Hello students, welcome back to the English class. Today the explanation of the lesson Evans tries an O level will continue. You know that the examination was over and the prison officer Stephens escorted McLeary up to the prison gate. He was then Stephens was going to the canteen to have a belated cup of coffee, but uh, but before going there, he wanted to see Evans one last time. Uh, so he went to Evans's cell. After opening the peephole, and when he saw inside the cell, he was shocked. He found that that someone was lying stretched on Evans's chair. First, he thought that he was Evans. Then he realized that he was McLeary, who was lying injured. The grey regulation blanket was slipping from his shoulders, and his he had injury on his head. His head was covered with blood, and the blood was spreading all over his beard and the clerical collar and the front of the clerical gown or coat. After seeing this, Stephens shouted loudly uh, for Jackson. Jackson came there, and this McLeary seemed to be in too much trouble. Uh, he uh, he took out his handkerchief from his pocket and held it to his head to stop the bleeding. Uh, Jackson sent Stephens to call the ambulance so that the injured McLeary could be sent to hospital. McLeary raised himself up, and he asked the prison officer not to call the ambulance because he was all right. He asked him to call the police. Then Then he got a question paper from the table and grasped it into his blood-stained hands. Then he was taken to the prison yard where he was greeted by the governor. On seeing the governor, McLeary asked him if he had called the police. To this, the governor replied, yes. And the governor wanted to send him to hospital, but McLeary asked him not to do so because he was all right, and he asked him whether he had called the police. The governor said yes. Then McLeary showed him the question paper. Actually, there was a photocopied sheet that was cleverly superimposed on the last page of the question paper. It was written in German, and it actually there was a complete escape plan given on that sheet of the question paper. And you know that governor knew a little German. He tried to translate the German text into English. Now today we'll start from here on page number 83, second paragraph. The governor, on that sheet of the question paper, it was written in German. Uh, there's one or two sentences are written in German. After that, the governor will translate the German text into English. Sei sollen dem Scorn, something like this in German. I will read only English. You must follow the plan already something. Okay. The governor's German is not very good. Sometime where he knows correctly, he has translated correctly. Where he does not know, he has written some words like this, something or like this. You must follow the plan already something. So जो उस जो क्वेश्चन पेपर के लास्ट में जो एक फोटोकॉपीड शीट थी
जिसके ऊपर जर्मन में एस्केप प्लान लिखा हुआ था, वो उस एस्केप प्लान का ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है। और गवर्नर साहब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इस तरह पढ़ रहे हैं, यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग। तो उस प्लान में जो है इवेंट्स के लिए एक इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे, वो ये इंस्ट्रक्शंस हैं। उसमें लिखा था कि आप प्लान को अच्छे से फॉलो करना, यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग, मतलब आप ये जो प्लान पहले बताया जा चुका है उसको आप अच्छे से फॉलो करेंगे। द वाइटल पॉइंट इन टाइम इज़ 3 मिनट्स बिफोर द एंड ऑफ द एग्ज़ामिनेशन। जो सबसे वाइटल पॉइंट है टाइम का, वो है एग्ज़ामिनेशन के 3 मिनट पहले। आपको याद होगा कि एग्ज़ामिनेशन के 3 मिनट पहले, एग्ज़ामिनेशन ख़त्म होने के 3 मिनट पहले, यानी 11:22 पर एक फ़ोन आया था, ठीक है। वो फ़ोन जो है जो 11:22 पर आया था इसके पास, स्टीफेंस के पास, वो इम्पोर्टेंट है। बट समथिंग 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 समथिंग, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो गवर्नर साहब ट्रांसलेट नहीं कर पाए। डोंट हिट हिम टू हार्ड, उसके बाद लिखा था कि आप उसको बहुत हार्ड ना मारिएगा। समथिंग समथिंग, डोंट हिट हिम टू हार्ड, रिमेंबर ही इज़ अ मिनिस्टर। तो उसमें लिखा था कि आप वो चूँकि मिनिस्टर है, मैकलेरी जो है क्योंकि एक मिनिस्टर है, आप उसको बहुत ज़ोर से मत मारिएगा। एंड डोंट ओवर डू द स्कॉट एक्सेंट, और उससे कहा गया कि आप स्कॉट्स एक्सेंट जो है ना बहुत ओवरडू मत करिएगा, यानी कि उसकी ज़्यादा नकल मत करिएगा स्कॉट्स की, क्योंकि जब मैकलेरी साहब जो है ना वो स्कॉटिश हैं और उनका एक्सेंट जो है स्कॉटिश है। तो जब मैकलेरी साहब को तुम मारकर भागोगे तो, और मैकलेरी के ड्रेस में जब तुम भागोगे, तो मैकलेरी साहब की ओवर एक्टिंग मत कर देना कि उनका ब्रॉड जो स्कॉटिश एक्सेंट है उसको ओवरडू करो, तो नहीं तो तुम पकड़े जाओगे, ठीक है। उसके बाद जो है अ फास्ट अप्रोचिंग सायरन वेल्ड टू इट्स क्रेसेंडो। क्रेसेंडो का मतलब होता है लाउडेस्ट पॉइंट इन अ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग साउंड। जैसे जो सायरन होता है उसकी आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती है, तो धीरे धीरे बढ़ने के बाद जो सबसे ऊंचा पॉइंट होता है, जो लाउडेस्ट पॉइंट होता है, जिस पे आवाज़ सबसे तेज़ हो जाती है, उसको कहते हैं क्रेसेंडो। तो फास्ट अप्रोचिंग सायरन वेल्ड टू इट्स क्रेसेंडो, यानी पुलिस की गाड़ी आ रही थी, उसमें सायरन बज रहा था और वो जो है उसकी आवाज़ अपने पीक पर थी। द ग्रेट डोर्स ऑफ द प्रिजन यार्ड वर पुश्ड बैक, तो पुलिस की गाड़ी अंदर आने के लिए जो है प्रिजन यार्ड का गेट जो है उसको खोला गया। एंड अ वाइट पुलिस कार स्क्वील्ड टू अ जर्की हॉल्ट बिसाइड देम, तो एक वाइट कलर की पुलिस कार जो है वो प्रिजन यार्ड के में आकर के जहाँ पे ये लोग खड़े हुए थे उनके पास आके रुकी। स्क्वील का मतलब होता है जो सडनली जब गाड़ी आके रुकती है या उसमें तेज़ चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगाई जाती है, तो उसमें एक जो आवाज़ होती है उसको स्क्वील कहते हैं। और जर्की मीन्स झटके के साथ, तो गाड़ी जो है वो झटके के साथ आके रुकी और उसमें जो है स्क्वील का साउंड पैदा हुआ, ठीक है। डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट कार्टर swung himself out of the passenger seat, तो इसमें एक पुलिस ऑफिसर थे, ये कैरेक्टर है, इसको याद रखिएगा, डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट कार्टर, इनका नाम कार्टर है। swung himself out of the passenger seat, वो पैसेंजर सीट पे पीछे बैठे हुए थे, वो वहाँ से कार से जल्दी से बाहर निकले एंड सल्यूटेड द गवर्नर। व्हाट द हेल इज हैपनिंग, ये सब क्या हो रहा है, और ये कार्टर ने पूछा। एंड टर्निंग टू मैकलेरी क्राइस्ट हु इज हिट हिम, उसके बाद मैकलेरी की तरफ वो मुड़े और उनको उनकी हालत देख करके कार्टर ने पूछा ये किसने इसको हिट किया। बट मैकलेरी कट अक्रॉस वट एवर एक्सप्लेनेशन द गवर्नर माइट हैव गिवन, तो इससे पहले कि गवर्नर कोई एक्सप्लेनेशन इस बात का देते तो मैकलेरी ने इसको कट कर दिया, यानी गवर्नर साहब को मौका नहीं दिया एक्सप्लेनेशन देने का। एल्सफील्ड वे ऑफिसर आई नो वेयर एबैंस, तो मैकलेरी ने
ये डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट कार्टर को बताया कि एवेंस जो है वो एल्फील्ड वे की तरफ गया हूँ। He was breathing heavily and leaned for support against the side of the car. ये मैक्लेरी काफ़ी तेज़ी से सांसें ले रहा था। He was breathing heavily, और वो सपोर्ट के लिए, जो कि वो काफ़ी वीक भी फील कर रहा था, तो साइड ऑफ द कार के से सपोर्ट उसने ले ली। और लीन में झुका थोड़ा, तो कार से सपोर्ट लेने के लिए वो झुका। वेयर द इम्प्रिंट ऑफ हिज हैंड वॉज लेफ्ट इन टार्निश्ड क्रिम्सन, और जब वो सपोर्ट लेने के लिए वो झुका आगे, तो उसके हाथ का प्रिंट जो है कार के ऊपर पड़ गया। और ये चूँकि उसके हाथ में ब्लड लगा हुआ था, तो उसके ब्लड का निशान कार पे पड़ा। वो निशान कैसा था? ये ब्लड का निशान जो है वो क्रिम्सन का कलर होता है। क्रिम्सन मीन्स डीप रेड, और लेकिन वो क्रिम्सन कलर जो है टार्निश हो गया था, क्योंकि बहुत ब्राइट जो है वो कलर उस पर नहीं आया था। निशान जो था कार पे बहुत ब्राइट नहीं था, और टार्निश का मतलब होता है कि जिसकी ब्राइटनेस जो है थोड़ा कम हो। तो जो क्रिम्सन कलर की ब्राइटनेस जो है ना वो कम थी, यानी जो कार पे उसके हाथ का जो इम्प्रिंट जो पड़ा था, निशान था। इन बिविल्डरमेंट कार्टर लुक्ड टू द गवर्नर फॉर गाइडेंस। तो बिविल्डरमेंट मीन्स इन सरप्राइज, ग्रेट सरप्राइज। तो कार्टर ने बहुत बड़ी सरप्राइज से गवर्नर को देखा फॉर गाइडेंस के लिए, यानी ये कार्टर पूछना चाहता था कि अब मैं क्या करूं। व्हाट? टेक हिम विद यू इफ़ यू थिंक ही विल बी ऑल राइट। तो गवर्नर साहब ने कार्टर को कहा, देखो अगर तुम समझते हो कि इसकी तबीयत ठीक रहेगी तो आप इसको अपने साथ ले जा सकते हो, यानी आप हॉस्पिटल ले जाने के बजाय इसको आप जो अपने साथ ले जाओ, ताकि आपको एवेंस को ढूंढने में मदद कर सके। ही इज़ द ओनली वन हु सीम्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग। यही एक आदमी है जो जानता है कि क्या हो रहा है। तो गवर्नर साहब ने कार्टर को कहा कि आप ये मैक्लेरी को अपने साथ ले जाओ, ताकि वो एवेंस को ढूंढने में आपकी मदद करें, क्योंकि यही एक आदमी है जो जानता है कि सब कुछ क्या हो रहा है। कार्टर ओपन द बैक डोर एंड हेल्प्ड मैक्लेरी इनसाइड। तो कार्टर ने बैक डोर ओपन किया और मैक्लेरी को अपनी गाड़ी में बिठाया। एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स द कार लीप्ड अवे इन स्पर्ट ऑफ ग्रेवल। स्पर्ट ऑफ ग्रेवल मीन्स वेरी फास्ट। तो उसको मैक्लेरी को अपनी गाड़ी के पीछे बिठाया, और कुछ ही सेकंड्स में और गाड़ी बहुत तेज़ी के साथ बाहर निकल गया। एल्फील्ड वे मैक्लेरी हैड सेड, एंड देयर इट वाज स्टेयरिंग अप एट द गवर्नर फ्रॉम द लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द जर्मन टेक्स्ट। तो गवर्नर साहब जो है वो अभी भी वो जो सुपर इम्पोस्ट कॉपी थी क्वेश्चन पेपर के लास्ट पे, उस शीट को अभी भी पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि एल्फील्ड वे, मैक्लेरी ने गवर्नर को बताया था कि एवेंस एल्फील्ड वे की तरफ गया है, ठीक है। तो उसमें पहले तो आपने देखा कि उसमें क्या लिखा हुआ था, उससे वहीं से ये कंटिन्यू है। तो फ्रॉम एल्फील्ड वे ड्राइव टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट। तो उसमें इंस्ट्रक्शन जो लिखा हुआ था क्वेश्चन पेपर में वो ये था कि पहले आप एल्फील्ड वे की तरफ जाओ, यानी जब आप यहाँ से भागोगे जेल से तो पहले आप एल्फील्ड वे की तरफ जाओ। एल्फील्ड वे से आप हेडिंगटन राउंड अबाउट की तरफ जाओगे। वेयर यस ऑफ कोर्स द एग्जामिनेशन, ये गवर्नर साहब अपनी बात कह रहे हैं। यस ऑफ कोर्स द एग्जामिनेशन बोर्ड वॉज इन एल्फील्ड वे एंड समवन फ्रॉम द बोर्ड मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन द एस्केप प्लान फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो गवर्नर साहब अपनी बात कह रहे हैं कि जब उन्होंने देखा कि उसको कहा गया एल्फील्ड वे जाने के लिए, तो गवर्नर साहब कहते हैं कि हाँ, कि क्योंकि एग्ज़ामिनेशन बोर्ड जो है एल्फील्ड वे में है, और बोर्ड का कोई आदमी इस प्लान में ज़रूर इन्वॉल्व है, वो ये समझ रहे हैं। द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ द करेक्शन स्लिप। तो ये समझ रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर की लास्ट शीट पे जो ये प्लेन ऑफ एस्केप वाली शीट लगा दी गई थी वो, और जो करेक्शन स्लिप जब एग्ज़ाम चल रहा था, जो फ़ोन कॉल आया था करेक्शन करवाने के लिए, वो उनको इन दोनों चीज़ों के बारे में शक है कि ये जो है एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के किसी आदमी की मिली भगत का नतीजा है।
द गवर्नर टर्न टू जैक्सन एंड स्टीफेंस, आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट्स हैपेंड, डू आई। तो उसके बाद गवर्नर साहब जो है जैक्सन और स्टीफेंस की तरफ मुड़े और उसको कहा कि मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है अब आप लोगों को कि क्या हुआ है। हिज वॉइस साउंडेड ऑलमोस्ट काम इन इट्स स्केदिंग कंटेम्प्ट। तो हालांकि उनकी आवाज़ में कामनेस थे, काम थी, लेकिन उसके अंदर जो है कंटेम्प्ट से भरी हुई थी। स्केदिंग कंटेम्प्ट, स्केदिंग मीन्स वेरी हार्श, कंटेम्प्ट मीन डिसलाइक या नफ़रत। तो उनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा डिसलाइक, कंटेम्प्ट शामिल थी, लेकिन वो थोड़ा काम थी उनकी आवाज़। एंड विच वन ऑफ यू टू मोरॉन्स वॉज इट हु टुक ए बैंस फॉर अ नाइस लिटिल वॉक टू द मेन गेट्स एंड वेव्ड हिम बाय बाय। फिर गवर्नर साहब ने पूछा कि तुम दोनों में से वो कौन बेवकूफ़ था जो एवेंस को वॉक करवाते हुए प्रिजन के मेन गेट्स तक ले गया था और उसको बाय बाय कहा था। ठीक है, तो इट वॉज मी सर, स्टेमर्ड स्टीफेंस। तो स्टीफेंस ने हकलाते हुए कहा कि ये मैं था सर जो मैकलेरी को प्रिजन गेट्स तक ले गया था। जस्ट लाइक यू टोल्ड मी सर आई कुड हैव सोन। तो स्टीफेंस ने कहा कि जैसे कि आपने कहा था सर, मैं स्वेयर कर सकता हूँ, मैं कसम खा सकता हूँ सर, आपने मुझसे कहा था और उसी वजह से मैं मैकलेरी को मेन गेट्स तक ले गया था। व्हाट, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू से, व्हाट द हेल। गवर्नर साहब नाराज़ हो गए। तो उन्होंने कहा क्या, जैसे मैंने कहा था। व्हेन यू रैंक सर एंड टोल्ड मी टू। तो स्टीफेन कहता है जब आपने मुझे फ़ोन किया था और टोल्ड मी टू। When was that? The governor's voice was a whipping blow, was a whiplash blow. गवर्नर साहब जब उन्होंने कहा, स्टीफेंस ने, कि आपने कहा था सर, तो गवर्नर साहब ने कहा कि कब कहा था। और जब उन्होंने ये बात कही तो उनकी आवाज़ जो है ना बिल्कुल ऐसी थी जैसे जैसे विप की तरह उनकी आवाज़ लग रही थी, विप माने कोड़े की तरह। विप्लैश ब्लो, विप्लैश नाउ। उनकी आवाज़ जो है ना विप्लैश हो गए थे, जैसे वो कोड़े से मार रहे हों, ऐसी आवाज़ थी उनकी। तो यू नो सर अबाउट 11 जस्ट बिफोर। तो स्टीफेंस ने उनको कहा कि एट 11 मीन्स 11:20 पर आपने मुझे फ़ोन किया था, जस्ट बिफोर द एग्ज़ामिनेशन वॉज ओवर। एग्ज़ामिनेशन के ख़त्म होने से थोड़ा पहले 11:20 पर आपने मुझे फ़ोन किया था और कहा था कि आप मैकलेरी को मेन गेट तक छोड़कर आओगे। तो यू ब्लीदरिंग इडियट मैन, इट वाज़न्ट मी हू रैंक यू, डोंट यू रियलाइज। तो गवर्नर साहब ने उसको डांटते हुए कहा कि उसको कहा कि तुम ब्लीदरिंग इडियट हो। मीन्स ब्लीदरिंग मीन्स एब्सल्यूट, यानी पक्के इडियट हो। उसने कहा तुम पक्के इडियट हो, वो मैं नहीं था जो तुमको रिंग किया था, तुमको फ़ोन किया था। डोंट यू रियलाइज, क्या तुम इतना भी नहीं समझते हो कि मेरी आवाज़ तक नहीं समझ रहे हो कि किसका फ़ोन था किसका नहीं। तो एक्चुअली हुआ ये था कि एग्ज़ामिनेशन ख़त्म होने से 5 मिनट पहले एट 11:20 आपने देखा होगा कि किसी का फ़ोन आया था। जैक्सन ने स्टीफेंस को बुलाकर कहा कि गवर्नर साहब का फ़ोन है। तो उस फ़ोन पे किसी ने बाहर से कोई फ़ोन आया था और किसी ने गवर्नर साहब बंद करके वो स्टीफेंस को कहा था कि तुम जो है मैकलेरी को गेट तक छोड़कर आओगे, और स्टीफेन ने समझा था कि वो गवर्नर साहब कह रहे हैं। बट what was the use? He had used the telephone at that time, but only to try unsuccessfully once more to get through to the examinations board. तो उस वक्त क्या हुआ था कि गवर्नर साहब जो है 11:20 पर, उस वक्त गवर्नर साहब भी जो है फ़ोन कर रहे थे एग्ज़ामिनेशन बोर्ड को। वही सब उनके दिमाग में एक बात खाई जा रही थी। आपने इससे पहले देखा होगा कि करेक्शन स्लिप वाला फ़ोन किसने किया था। वो इस बात को कंफर्म करने के लिए, क्योंकि उनके मन में डाउट था कि कहीं ऐसा नहीं कि कोई आदमी इसके साथ मिला हो, उसने किया हो, कि कोई ये कोई होक्स हो, कोई मजाक हो।
तो उन्होंने लेकिन वो एग्ज़ामिनेशन बोर्ड का फ़ोन जो है वो इंगेज जा रहा था, इसलिए उनकी बातचीत नहीं हो पा रही पाए। और यह ऐसा जो है ना जानबूझ के किया गया था, एग्ज़ामिनेशन बोर्ड का फ़ोन इंगेज किया था ताकि गवर्नर साहब कंफर्म ना कर पाए कि वहाँ से जो कॉल आए थे वो किसकी थे। He shook his head in growing despair and turned on the senior prison officer. तो उन्होंने अपना सर जो है बहुत ही डिस्पेयर में हिलाया, मैं बहुत ही निराशा में उन्होंने अपना सर हिलाया और फिर सीनियर प्रिजन ऑफिसर यानी जैक्सन की तरफ मुड़ करके कहा, एज फॉर यू जैक्सन, जहाँ तक तुम्हारा सवाल है जैक्सन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिटेंडिंग यू हैव गॉट अ ब्रेन ए। तो जैक्सन से कहते हैं कि तुम कब तक तुम ये प्रिटेंड करते रहे हो कि तुम्हारे पास एक ब्रेन भी है। वेल आई विल टेल यू समथिंग जैक्सन, योर स्कल इज एम्प्टी। तो कहते हैं हाँ, मैं तुमको एक बात कहना चाहता हूँ जैक्सन, कि तुम्हारा हेड जो है वो एम्प्टी है, यानी तुम्हारे हेड में कोई ब्रेन नहीं है। ए वेल आई विल टेल यू समथिंग जैक्सन, योर स्कल इज एम्प्टी, एब्सोल्युटली एम्प्टी, तुम्हारी खोपड़ी बिल्कुल खाली है। इट वॉज जैक्सन हु हैड स्पेंट 2 hours इन एवेंसेस सेल द प्रीवियस इवनिंग। जैक्सन ही था जिसने एवेंस के सेल में इससे प्रीवियस इवनिंग को 2 घंटे उन्होंने जैक्सन ने खर्च किए थे वहाँ पे एवेंस के सेल में। दैट देयर वॉज नथिंग हिडन अवे देयर, sorry, it was Jackson who had spent 2 hours in Evance's cell on the previous evening. प्रीवियस इवनिंग को जैक्सन ही था जो एवेंस के सेल में 2 घंटे उसने स्पेंड किए थे। एंड इट वॉज जैक्सन हु हैड कॉन्फिडेंटली रिपोर्टेड, और जैक्सन ही ने गवर्नर साहब को ये रिपोर्ट दिया था, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी, दैट देयर वॉज नथिंग हिडन अवे देयर, नथिंग एट ऑल। तो जैक्सन ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि एवेंस के सेल में कोई चीज़ छुपा कर रखी नहीं गई है। एंड येट एवेंस हैड समहाउ मैनेज्ड टू कंसील नॉट ओनली अ फॉल्स बियर्ड, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अ डॉग कॉलर एंड ऑल द रेस्ट ऑफ हिज क्लरिकल पैराफर्नेलिया। तो गवर्नर साहब इस बात पे नाराज़ हो रहे हैं कि जैक्सन ने एवेंस के सेल को अच्छे से चेक किया था और कहा था कि उसके अंदर कोई भी चीज़ छुपा के नहीं रखी गई है, लेकिन इसके बावजूद एवेंस ने अपने सेल में कुछ चीज़ें छुपा कर रखने में कामयाब हो गया था। वो कौन सी चीज़ें थीं? एक फॉल्स बियर्ड थे, नकली दाढ़े, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, एक चश्मा था, अ डॉग कॉलर, एक डॉग कॉलर था जो क्लरिकल जो प्रीस्ट पहनते हैं, और ऑल द रेस्ट ऑफ द हिज क्लरिकल पैराफर्नेलिया, और जो क्लरिकल पैराफर्नेलिया होता है जो प्रीस्ट लोग पहनते हैं जो सब, वो सारी चीज़ें उसने छुपा कर रखी हुई थी। एक वो भी था, ओवरकोट भी था, ठीक है। मतलब कहने का कि भेष बदलने का पूरा सारे साजो सामान मैक्लेरी ने छुपा कर रखा था और स्टीफेंस को पता नहीं चला। But also some sort of weapon with which he had given McCleary such a terrible blow across the head. आर्ग तो उसने कहा सिर्फ इतना ही नहीं, एवेंस ने कोई वेपन भी छुपा के रखा था, कोई चीज़ छुपा के रखी थी जिससे कि वो उसने मैक्लेरी साहब को इतना टेरिबल ब्लो दिया था, इतनी ज़ोर से मारा था अक्रॉस द हेड, सर के ऊपर। A prison van backed alongside, but the governor made no immediate move. तो गवर्नर साहब जहाँ खड़े तो वहीं पर एक प्रिजन वैन भी आकर के खड़ा हुआ, लेकिन गवर्नर साहब ने फ़ौरन मूव नहीं किया। ही लुक डाउन अगेन एट द लास्ट लाइन ऑफ द जर्मन। तो अभी तक उन्होंने जर्मन क्वेश्चन पेपर में जो एस्केप प्लान था उसको पढ़ ही रहे थे, वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इससे पहले जहाँ उन्होंने छोड़ा था उसके आगे पढ़ेंगे। To the Haddington roundabout, where you go straight over and make your way to Newgra Ben। तो इसके प्लान में ये था कि पहले आप एल्सफील्ड वे जाएंगे
पहले आप एलफील्ड पे जाएंगे, उसके बाद जो है हेडिंगटन राउंड अबाउट जाएंगे, और फिर हेडिंगटन राउंड अबाउट से आप जाएंगे, यू गो स्ट्रेट ओवर एंड मेक योर वे टू न्यू ग्राबेन। उसके बाद आप न्यू ग्राबेन जाएंगे। न्यू ग्राबेन, गवर्नर साहब ये क्वेश्चन मार्क लगा, गवर्नर साहब सोचते हैं ये न्यू ग्राबेन कहाँ है। तो न्यू ग्राबेन जो है एक नई जगह का नाम है जिसको गवर्नर साहब नहीं जानते थे। वेयर ऑन अर्थ, ये कहाँ है दुनिया में, न्यू समथिंग, न्यू ग्रेव। तो आइडिया लगा रहे हैं कि न्यू ग्राबेन का मतलब क्या है। वो कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या न्यू ग्रेव है, नेवर हर्ड ऑफ इट, लेकिन न्यू ग्रेव का कभी सुना नहीं ये नाम। देयर वॉज अ वॉर ग्रेव, एक वॉर ग्रेव भी है, वो सुना हुआ है, समवेयर नियर रीडिंग के पास कहीं पे। बट नो, इट वॉज प्रोबेबली अ कोड वर्ड, लेकिन शायद ये कोई कोड वर्ड होगा। और एंड देन इट हिट हिम, तब ये सोच ही रहे थे कि शायद न्यू ग्रेव हो सकता है या वॉर ग्रेव हो सकता है, ठीक है। तो तभी उनके दिमाग में एक आइडिया ने हिट किया। देन इट हिट हिम, यानी एक आइडिया आया, उनके दिमाग को हिट किया। न्यूबरी, गॉड, यस न्यूबरी वॉज अ प्रेटी बिग सॉर्ट ऑफ प्लेस, बट फिर उनके दिमाग में एक जगह का नाम आया, न्यूबरी उस जगह का नाम था। फिर गवर्नर साहब को यकीन हो गया कि वो न्यूबरी ही गया। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में न्यू ग्राबेन लिखा हुआ था, तो इसका मतलब जो है गवर्नर साहब ने समझा कि ये इसका मतलब जो है वो न्यूबरी है। वो श्योर थे कि वो जो है इवेंट जो है वो न्यूबरी गया हुआ है। तो पहले एलफील्ड वे से, पहले प्रिजन से एलफील्ड वे से हेडिंगटन राउंड अबाउट, हेडिंगटन राउंड अबाउट से न्यूबरी जाएगा। ओके, तो ही रैप्ड आउट हिज ऑर्डर्स टू द ड्राइवर। तो फिर वो उन्होंने अपने ड्राइवर को, उनके बगल में गाड़ी आके रुकी थी, तो उन्होंने अपने ड्राइवर को एक ऑर्डर दिया, सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन एंड स्टेप ऑन इट। और अपने ड्राइवर को ऑर्डर दिया कि आप सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन जाओगे, उसके अंदर जाओगे, स्टेप ऑन इट, टेक जैक्सन एंड स्टीफेंस हियर, और तुम जैक्सन और स्टीफेंस को भी साथ लेकर जाओगे। एंड व्हेन यू गेट देयर आस्क फॉर बेल, और जब तुम वहाँ जाओगे तो बेल को पूछना, चीफ इंस्पेक्टर बेल, गॉट दैट, यानी वहाँ पे सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन में एक चीफ इंस्पेक्टर होंगे, उनका नाम है बेल है, आप बेल से मिलना, गॉट दैट। ही लीप्ड द स्टेयर्स टू हिज ऑफिस, और उसके बाद वो अपने ऑफिस जाने लगे। उनका ऑफिस ऊपर था, 3 स्टेयर्स लीप करते हुए वो अपने ऑफिस पहुंचे, यानी बहुत तेज़ी में, बहुत जल्दी में थे। गॉट बेल ऑन द फोन इमीडिएटली एंड पुट द फैक्ट बिफोर हिम, और फ़ौरन जो है उन्होंने बेल को फ़ोन लगाया, जो चीफ इंस्पेक्टर बेल है उसको उन्होंने फ़ोन पर बताया, एंड पुट द फैक्ट बिफोर हिम, और उन्होंने बेल साहब को पूरी बातें उनके सामने रखें। विल गेट हिम सर, सेड बेल, विल गेट हिम विद अ बिट ऑफ लक। तो बेल ने उनको अश्योर किया कि हम एवेंस को पकड़ लेंगे, और विद अ बिट ऑफ लक, और अगर थोड़ी किस्मत ने साथ दिया तो हम ज़रूर उसको पकड़ने में कामयाब होंगे। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे अप टू हियर ओनली, विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।